فضل اور اطمینان ہمیشہ آپ کی روحوں کے ساتھ ہو۔ آج میرے دل میں جو کلام تھا آپ کے لیے وہ یہ تھا، رسولوں نے، شاگردوں نے یسوع مسیح کو کہا ہمارا ایمان بڑھا۔ ہمارا کیا کرچی؟ ایمان کو بڑھا۔ پھر یسوع نے کیا طریقہ استعمال کیا، ہم پہلے تلاوت میں دیکھتے ہیں۔ یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں سامنے قاری لوکا کی معرفت لکھی ہوئی خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا باب نمبر 17 اور آیت نمبر 5 سے 6 ہے۔ لوکا کی معرفت لکھی ہوئی خدا یسوع مسیح کی انجیل، باب نمبر 17 آیت نمبر 5 کا 6 مرحوم ہے۔ اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور پڑھے جانے خداوند کی مگر تم میں سے ایسا کون ہے جس کا نوکر ہل جوتتا یا گلا بانی کرتا ہو اور جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر باندھ کر میری خدمت کر، اس کے بعد تو خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کی جن کا حکم ہوا تعمیل کی؟ اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام پڑھے اور سننے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ شاگردوں نے جب کہا، رسولوں نے کہا اے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، تو یہاں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک بات کام کرنا اور دوسری بات مسیح یسوع نے کلام کرنا شروع کیا۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کا ایمان نہیں بڑھایا۔ بھئی ان کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، دعا کی جائے تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے۔ یسوع نے ایسا نہیں کیا۔ یسوع نے کیا کیا؟ اور جب انہوں نے کہا اے استاد، اے خداوند، اے خدا ہمارے ایمان کو بڑھا، تو یسوع نے کیا شروع کیا؟ کلام کرنا شروع کیا۔ اور کیونکہ لکھا ہے کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، سننا مسیح کے کلام سے۔ کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ تو یسوع نے کیا کیا؟ کلام سنانا شروع کیا، کلام سنانا شروع کیا۔ تو جب کلام شروع کیا تو ساتھ ایک نوکر کی مثال دی۔ پہلے کا رائی کے دانے کے برابر، اب رائی کے دانے پر لوگوں نے بہت ڈاکٹرین کی ہے، یہ مضبوط ہوتا ہے، یہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ تو میں اس کی انڈرسٹینڈنگ یوں کرتا ہوں کیونکہ رائی کا دانہ بیج کے ساتھ تشبیہ ہے، یہ بیج ہے۔ تو جب بیج بویا جاتا ہے تو پھر وہ بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، وہ درخت بن جاتا ہے اگر بیج کو زمین سے نکالا نہ جائے۔ وہ ایک درخت بن جاتا ہے، تو پھر اس پر چڑیاں
घोंसले बनाती है और चिड़िया वहां क्या करती हैं जी? बसेरा कर लेती हैं जी। तो ईमान भी ऐसे ही है। तो बीज बोने वाला इब्ने आदम है, तो बीज खुदा का कलाम है, जो बोया जाता है तो वो बढ़ता है। बात टूटने की या गिरने की नहीं है जी, बात है बढ़ने की। जब बीज बोया जाएगा तो उसकी बढ़ोतरी होती है, कहानियों से बढ़ोतरी नहीं होती। इसलिए उन्होंने कहा, इन्होंने सच्चाई के कलाम को छोड़कर कहानियों पर मतवज्जा होना शुरू कर दिया। कहानियां नहीं, कलाम बढ़ोतरी पैदा करता है, कलाम से ईमान पैदा होता है। तो दूसरा काम यीशु ने कहा इस बयान में, भाई एक नौकर है, वो अपने मालिक के लिए खाना लगाए, जब वो खेत से काम कर कर आए तो फिर उसका वो शुक्रगुजार होगा। ऐसे नहीं किया, बल्कि नौकर के लिए मालिक ने क्या किया जी? खाना तैयार किया। तो उसने कहा जो जब कर चुको, जो करना चाहिए कर चुको, जब कर लो तो फिर कहो निकम्मे नौकर। जो करना चाहिए, हमने किया कुछ नहीं होता तो कहते हैं निकम्मे। यीशु ने कहा जब सब कुछ कर चुको, जो आपने करना है, जो आपके जुमे है, जैसे आपके जुमे है अंजील सुनाना, अंजील सुना लो, शागिर्द बना लो। तो कहा मैंने जाकर तुम बस सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो शागिर्द बनाने से पहले असूल है, पहले खुद शागिर्द बनना पड़ता है। जो अच्छा शागिर्द होता है वो अच्छा उस्ताद होता है, जो अच्छा सुनने वाला होता है वो अच्छा सुनाने वाला होता है। तो जो ये सब चीजें कर लो तो फिर कहो निकम्मे नौकर। अब काम करेंगे तो क्या होगा? ईमान बढ़ेगा। जब काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा जी? ईमान की बढ़ोतरी नहीं होगी। दो तरीके हैं जी। खालिक जब बोलता है तो फर्क है, जब बंदा बोलता है, आदमी बोलता है। तो जब आदमी बोलता है, आदमी भी कलाम बोलता है, और इलाही शख्स यीशु मसीह भी कलाम बोलता है, इलाही शख्स रूह कुद्दस भी कलाम बोलता है, और इलाही शख्स खुदा भी कलाम करता है। और बंदे के बोलने में फर्क क्या है और इलाही शख्स के कलाम बोलने में क्या फर्क है? क्योंकि इलाही शख्स अकनून, अकनून का मतलब भी शख्स होता है, इसलिए हम यीशु मसीह को इलाही कहते हैं, क्योंकि अकनून तो शख्स तो आदमी भी है। अब आदमी में और इलाही शख्स में बोलने में फर्क क्या है? जब आदमी कलाम बोलता है, रूहानी हो, आदमी के कलाम की बात कर रहा हूँ, जिस्मानी हो, दीनदार हो, ईमान वाला हो, और रास्तबाज हो, गैर रास्तबाज हो, कोई भी बंदा जब बोलेगा तो वो कैफियत पैदा करता है। क्या पैदा करता है जी? कैफियत। आदमी के बोलने से कैफियत पैदा होती है, और इलाही शख्स के बोलने से ईमान पैदा होता है। नहीं समझ रहे भाई? इलाही शख्स बोले तो ईमान पैदा होता है, आदमी बोले तो कैफियत पैदा होती है। एक बात ये याद रखनी, मैंने 3 बातें करनी है इस मजमून में। आदमी बोलेगा तो क्या पैदा होगी? कैफियत। अगर वो खुशी की बातें कर रहा है तो खुशी की कैफियत बनेगी। अगर वो लड़ाई की बातें कर रहा है तो कौन सी कैफियत बनेगी? नहीं, लड़ाई की नहीं बनेगी। लड़ाई तो वो कर रहा है, लड़ाई की तो बातें कर रहा है, तो कैफियत कौन सी बनेगी? नफरत की। लड़ाई की बातें होंगी तो कैफियत
कौन सी बनेगी? मोहब्बत आएगी। कैफियत कौन सी बनेगी? नफरत की। तो जहां जहां वो बातें होंगी, जहां जहां वो शख्स होगा, वहां नफरत की कैफियत बन जाएगी, बेचैनी की कैफियत बन जाएगी, और बुरी बातें सोचने की और बुरी बातें देखने की कैफियत बन जाएगी। डराने वाली बातें करेंगे तो कौन सी कैफियत बनेगी? खौफ की। नफरत की बातें करेंगे तो कत्ल की बातें बनेगी, मंसूबे बनेगी। इसलिए बोलते क्या हो, इसलिए यीशु ने कहा हर निकम्मी बात, याद रखें, हर निकम्मी बात जो तुम करते हो अदालत के दिन उसका हिसाब दोगे, क्योंकि उस निकम्मी बात से कैफियत बनेगी। आप देखें, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ हो, आप कैफियत ऐसी बन जाए, आप डर जाएंगे तो आप बेचैन हो जाएंगे। किसी टीचर ने कहा कैफियत से, और जो जिससे बर्फ से वो तोड़ते उसको क्या कहते हैं? सुआ। तो आपकी बातें वो सुआ होती है। जैसे ही अंदर घुसते गए घर में तो बेचैनी, इधरों सुआ, इधरों सुआ, इधरों सुआ, ऐथे सुआ, क्योंकि कैफियत ऐसी बनी हुई है। अब वो कैफियत तोड़नी पड़ेगी। तो फिर आपको अपनी बीवी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ सुकून मिलेगा। कैफियत बनी हो ना भी कुछ हो तो बंदा बेचैन होता है। तो बेचैनी में दुआ भी नहीं होती, बेचैनी में गीत भी नहीं गाए जाते, बेचैनी में गीत भी नहीं गाए जाते। तो इसीलिए हुक्म मिला, जब तुम परेशान हो तो क्या करना? दुआ करना। जब खुश हो तो, अब खुशी की बातें की क्या बनी हुई है जी? खुशी की बातें की तो क्या बना है? अच्छी अच्छी बातें की क्या बने? कौन सी फजा बनी है? हाँ, कुछ खुशी की बातें की है। आज शादी ब्याह खुशी दी गल्लां होंदियां ना, ते एवं किसे किसे दी अड्डी उठती रही, क्योंकि फजा बनी है ना, एवं अड्डी उठती रही। समझते हैं ना? भां कुछ भी ना करना होता है, अड्डी उठती रहनी। सबब क्या है? कैफियत बनी है। ऐसे ही लोगों की रूहानियत कैफियत बनी होती है। चर्च में होते हैं, कहते हैं हालेलुया हालेलुया, बहुत कुछ कहते हैं, जोर से गीत गाते हैं, कैफियत तो नहीं। जैसे ही उस कैफियत से बाहर गए, नहीं मेरी बात को समझ पाए? हाँ भाई, आप समझ पाए? भाई कैफियत, मैंने एक बंदे का अपनी बेगम से पूछा रूहानियत क्या है, फिर मैंने इसको तजर्बा करवाया। इन्होंने बड़ी दुआ की, 90 दिन उन्होंने दुआ रोजा दुआ रोजा दुआ रोजा, हर चीज इन्हें बुरी लगती थी। व्हाइट सूट व्हाइट सूट व्हाइट सूट, कैफियत बनी है व्हाइट सूट, और दिखता ही कुछ नहीं, व्हाइट 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 व्हाइट। जैसे ही कैफियत तोड़ी, फिर वैसे के वैसे। मैं सच कह रहा हूं, सामने है, तजर्बा हुआ है। मैंने 90 दिन हो गया मैं इस कैफियत को सोच रहा था, फिर ये पक्का है। कैफियत है क्या? आप बातें कर रहे हैं, आप बातें करते 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 इस लेवल पर चले जाते हो, आपकी लड़ाई हो जाती है। अब क्या बना है? बातों से कैफियत है, बातों में कैफियत। तो शागिर्दों ने क्या? हमारे ईमान को बढ़ा। भाई कैफियत में ईमान नहीं होता। इसलिए तेरे कलाम नू दिल विच रखना, तेरे खिलाफ करा ना गुनाह। कलाम सुनने से ईमान पैदा होगा, ईमान होगा तो फिर ईमान बोला जाएगा। अब खुदा जब बोलता है
तो फिर क्या पैदा होता है? ईमान, कैफियत नहीं। हम कहते हैं खुदा हमसे बोला, हम कहते हैं खुदा ने हमसे बात की है, जैसे ही उस कैफियत से बाहर जाते हैं तो दुनियावी लोगों से भी बदतर होते हैं। दुआ करने के बाद भी मैंने ऐसा भी देखा है, चर्च में लड़ पड़ते हैं, चर्च में भी वो कैफियत के नीचे नहीं आते। हम कैफियत बनाई होती उसको भी रूहानियत कह रहे होते हैं। सुनिए, रूहानियत कैफियत का नाम नहीं है। रूहानियत ज़ात के अतबार से है। किसके अतबार से? ज़ात के अतबार से, नूर के अतबार से, जलाल के अतबार से, तख्त के अतबार से। मैंने कितनी चीजें बोली? ज़ात के अतबार से, लिखा ना, बड़ी खराबी से छूट कर ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ और उस वादे के सबब से। ये बात याद रखें, किसके सबब से? वादे। अब वादे में क्या है? मैं तो ऐसे कलाम की आयतों को सुनता हूँ। अब वादे में क्या है? लिखे ना, उस वादे के सबब से बड़ी खराबी से छूट कर ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। अब आपकी रूहानियत बदली है ज़ात के अतबार से। पहले बाल में किए सोतरे पता नहीं क्या क्या थे, जब हम ज़ाते इलाही में शरीक हो गए तो हमारी ज़ात बदली, और ज़ात का मफ़हूम तुख़्म से है। इसलिए लोग कहते हैं हम बपतिस्मे से नए सिरे से पैदा हुए हैं। बपतिस्मे से नए सिरे से पैदा नहीं होता आदमी। और लिखा है अनदेखे खुदा के कलाम से। कैसे लिखा है? गैर फानी तुख़्म से। किससे जी? गैर फानी तुख़्म से, लफ्जों से नहीं, बातों से नहीं, बल्कि जिंदा खुदा के कलाम से और रूह से नए सिरे से पैदा हुए। जब ज़ात का मफ़हूम देखते हैं तो तुख़्म का मफ़हूम है, क्योंकि ज़ात में तुख़्म पाया जाता है। तो आपकी ज़ात चेंज हुई, आपका तुख़्म चेंज हुआ, आप गैर फानी तुख़्म से नए सिरे से पैदा हुए। अब उस एतबार से रूहानियत को देखो। अब वो लाही शख्स कैसे देखता है, हम कैसे देखते हैं, उसका देखना और हमारा देखना फर्क है। उसका बोलना और हमारा बोलना फर्क है। वो हम कैफियत बनाते हैं, जब वो बोलता है तो क्या होता है? जमीन और आसमान की चीजें पैदा होती हैं। अनदेखी हो, देखी हो, हुकूमतें हो, इख्तियार हो, आसमान की हो, जमीन की हो, सब चीजें उसी के वास्ते और उसी के लिए और उसी में पैदा की गई। ये कौन है? ये NRK हो लगा कलमा है। क्योंकि जब कलमा बोला जाता है, जब कलमा बोलता है तो चीज़ें वजूद में आती हैं। और इसीलिए लिखा है अब्रानियों के खत में, उसके कहने से आलम भी पैदा हुए, उसके बोलने से आलम पैदा हुए। कैफियत पैदा नहीं होती। जिनकी कैफियत पैदा होती है कहते हमने रोया देखी है। बाद में जाकर मुझे पूछा किसी ने, इसने रोया भी देखी है जी, ये गैर जुबानें भी बोलता है, ये दुआएं भी करता है, ये सिर्फ भी पी रहा है, ये नशा भी कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। मैं क्या भाई ये कैफियत वाला हाँ हाँ वजद नहीं कह सकते, वजद वाला जिसमें से बदरूहें भी नजर आती हैं। हम उनको रूहानी समझ रहे होते हैं, वो तो फजा बनी है। बंदा ले आओ, कभी गीत ना गाए हो, कभी दुआ ना की हो, आप तजर्बा कर लेना, जब कोई बदरू हाजिर होगी वो भी जोर जोर से ताड़ियां मारना शुरू हो जाए। हालेलुया हालेलुया हाल। अब क्या है, जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसमें से
خدا بولتا ہے، جب خدا کا بیٹا بولتا ہے، جب روح القدس بولتا ہے، بولتی نہیں بولتا ہے، کیونکہ الہی شخص ہے، بولتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان پیدا ہوتا ہے تو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب بولنے سے پہلے شرط یہ ہے، بولنے سے پہلے شرط یہ ہے، پہلے دیکھا جاتا ہے۔ بولنے سے پہلے ایسا ہی نہیں، بولنے سے پہلے مثالیں بھی بنی ہیں، پہلے دیکھو پھر ہاتھ تولن واسطے تو دیکھنا ہی پڑے گا وزن پورا یا نہیں۔ اس میں بھی مفہوم کیا ہے؟ دیکھنے کا، پہلے دیکھا جاتا ہے۔ اب بندے کا دیکھنا فرق ہے اور خدا کے بیٹے کا دیکھنا فرق ہے، کیونکہ بندہ مخلوق ہے اور خدا کا بیٹا الہی شخص ہے۔ جب بندہ بولتا ہے تو وہ مستقبل میں جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بولتا ہے۔ ماضی میں جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بولتا ہے، جو اس کے ساتھ پیچھے ہوا ہوتا ہے اسی میں بولتا ہے، اسی پر اس کی بحث ہوتی ہے، اسی پر اس کی تقریر ہوتی ہے، اسی پر اس کی ساری باتیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ کسی کو کہہ دو جس کے ساتھ ماضی میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے وہ کہے گا ایسا نہیں ہوگا۔ فرض کر لیں ماضی میں میرے ساتھ میں کہوں یار بھرا کے ساتھ دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تجربہ ہے، ماضی ہے، بندے کی رسائی یہاں تک ہے، بندہ سوچ ہی یہاں تک سکتا ہے، جو اس کے ساتھ پیچھے جب اس کی لڑائی ہوتی ہے وہ کن چیزوں کو بولتا ہے، جو آگے ہونے والی اس کو، یا پیچھے جو ہوئی ہوتی ہے وہ جو ہو چکی ہے۔ یہ بندے کا دیکھنے کا طریقہ ہے، ہر بندے کا، روحانی ہو، دیندار ہو، اس کا طریقہ ہے وہ پیچھے چیزوں۔ میرے ساتھ پہلے ایسے نہیں ہوا، میں کسی کا چناؤ کروں گا تو کیا دیکھوں گا؟ کسی کو ساتھ میں لانا ہے، کیا دیکھوں گا؟ جو میرے ساتھ پیچھے ہوا ہے۔ خدا ایسے نہیں دیکھتا، خدا کا بیٹا بھی ایسے نہیں دیکھتا۔ لکھا تمام مخلوقات سے پہلے وہ موجود ہے، اور لکھا ہے، میں چاہوں گا حوالہ نہ پڑھیں، پطرس کا خط نکالے، پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت، پہلا پطرس پہلا باب، اس کا علم تو میں چاہ رہا ہوں ان لفظوں میں پڑھ لیتے ہیں جی۔ پطرس کا خط پہلا پطرس پہلا باب اور 20ویں آیت۔ پہلا پطرس پہلا باب 20ویں آیت لکھا ہے، اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر، اب بنائے عالم سے مراد جو چیزیں ہونی ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ اس کا علم، علم سابق اس کو کہتے ہیں، جو ہونا ہوتا ہے خدا کو پہلے معلوم ہوتا ہے، جو ہونا ہے وہ خدا کو پہلے سے معلوم ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر، اس کا علم تو بنائے عالم کے وقت سے تھا، عالم بننے سے پہلے کا وقت تھا، آدم کو بنانے سے پہلے کا، کائنات کو بنانے سے پہلے، فضا کو بنانے سے پہلے، طوفان بنانے سے پہلے، ہر طرح کی جنگ ہونے سے پہلے وہ جانتا ہے، آدم کے گناہ کرنے سے پہلے بھی وہ جانتا ہے میں جسے بنانے والا ہوں وہ گناہ کرے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے جب خدا دیکھتا ہے تو وہ مستقبل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ خدا جب دیکھتا کس کو کرتا ہے جی؟ تو ہم بندے جب دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو کس کو کرتے ہیں؟ ماضی میں جو ہوا۔ تو خدا جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ کس کو دیکھتا ہے؟ اب اس نے دیکھا ہے
उसने बोला है, इसलिए पतरस कहता, पौलुस रसूल कहता है मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। अब देखो ईमान बोलता है या बंदा बोलता है। बंदा बोलेगा तो पिछली चीजें देखेगा, खुदा का ईमान बोला जाएगा तो कौन सी चीजें जो होनी होती हैं, जो हुई नहीं, जो देखी नहीं, जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, दिल में नहीं आई, खुदा ने मोहब्बत रखने वालों के लिए वो चीजें रख छोड़ी जो आंखों ने नहीं देखी। ईमान है क्या चीज? ईमान रूह, ईमान सिद्ध है। लोग कहते हैं मैंने ईमान रखा, अच्छा करते हैं, मेरा ईमान है, अच्छा करते हैं। तो रसूल क्या कहता है? मैं ईमान लाया। लाया, हम भी लाए, आगे कुछ नहीं कहते। रसूल क्या कर रहा है? मैं ईमान लाया और इसीलिए बोलो ना, बोला। अब जब ईमान बोला जाएगा तो कौन सी चीजें? मुस्तकबिल की, ऐसा ही है या माजी की? मुस्तकबिल की। अब फैसला कर लो, हम ईमान रखने वाले हैं या ईमान बोलने वाले हैं। ईमान रखना भी चाहिए और ईमान बोलना भी चाहिए। तो इसीलिए यीशु के शागिर्दों ने कहा, ऐ खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा, और उसने कलाम करना शुरू किया। उसने कलाम करना शुरू किया। हमने भी कलाम करना शुरू करना है। जब फैसला करना है तो पहले क्या करना है? कलाम करना है। जब हमने बोलना है तो पहले कलाम बोलना है, क्योंकि हर काम के पीछे क्या होता है? कलाम। जैसे कलाम मिला पुराने अहदनामा में, सबको क्या करो जी? मार डालो, सबको मार दो, बच्चे भी मार डालो, औरतें भी मार डालो, जानवर भी मार डालो, एक भी चीज ना छोड़ना। कलाम हुआ है, सबको मार डालो। उसने क्या किया? अच्छी अच्छी औरतें रख ली, अच्छे अच्छे जानवर रख लिए, क्योंकि इंसान था ना, इंसान वो देख रहा था मेरे फौजी अच्छा राशन खा लेंगे, मेरे फौजी इन औरतों से अच्छी औलाद पैदा कर लेंगे, वो देख रहे थे ये चीजें। खुदा ने जब कलाम किया उसने क्या? सब मार डाल। उसने सब मारे नहीं। जब सब नहीं मारे तो नुकसान क्या हुआ? उसकी बादशाही जाती रही, उसका मसा जाता रहा, बादशाही जाती रही, हर एक चीज जाती रही, उसका इख्तियार जाता रहा, उसका खानदान बर्बाद हो गया, उसकी हर चीज खत्म हो गई। सुनिए, जो कलाम को तोड़ेगा उसके साथ ऐसा ही हो। फिर अब नए अहदनामा में भी कलाम मिला क्या? मैंने पिछली दफा कलाम सुनाया था। क्या कलाम मिला? दुश्मन के हवाला से। दुश्मन से क्या कर? दुश्मन के लिए क्या कर? दुआ कर। और क्या कर? इंज दी दुआ कर। देखो ऐसी दुआ, भाई मैं दुआ करांगा तेरे सिर ते चंगाड़ियांगा जनाब पग बज जाएगी, ये कलाम मिला है। अपनी आंखों से उनका अंजाम देखेगा, तू नहीं मरेगा जब तक वो हलाक ना हो जाए, ये कलाम मिला है। दाऊद को तो ये मिला है ना, आपको ये नहीं मिला। आप उनकी हलाकत अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। शागिर्दों ने भी हवाला दिया, जब यीशु को एक गांव में ना टिकने दिया, हमें कोई घर वाले ना टिकने देते, असी ते जनाबे वाला ते तो साडियां बाहां आकड़ियां। शागिर्दां नूं गुस्सा आ गया। पतरस याकूब जशीले लोग से, पतरस इन्हां सारे जोश आ गया, कहंदा जिस हुण हवाला दे रहे
क्योंकि इलाही शख्स का देखना और बोलना फर्क है। ये बंदे थे, इनका बोलना और इनका देखना फर्क था। बेशक ये फरजांद भी हो गए, फिर भी ये मखलूक है, खालक नहीं है। वो चीजें इन्हें नजर नहीं आती जो इलाही शख्स को आती है। फर्क है, यही फर्क है इलाही शख्स में और मखलूक शख्स में। हुआ क्या? हुआ ये, जब उसे टिकने ना दिया तो कहते ऐ उस्ताद ऐसे गाँव में असी भस्म कर दांगा जिस तरह एलिया ने किया। आसमान से आग मंगवाएंगे, भस्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। सबब क्या था? गैरत थी। यस्सु को उन्होंने टिकने ना दिया। क्यों टिकने नहीं दिया? पिछे उन्होंने जो लश्कर कट के आया उन्होंने पिंड का, तो उन्होंने कहना सारे सारे ठीए भजा देने हैं, इन्हें तो सारे जादूगर मुका देने हैं, इन्हें तो फलाने मुका देने हैं, इंज करते हैं, इन्हों इस गाँव से बड़े नहीं देते। टिकने ना दिया तो शागिर्द जोर से हलाक करने लगे। अब इलाही शख्स देख रहा है और बोलने लगा, कहता तुम कैसी रूखे हो, कैसी रूखे हो, मौत की रूखे हो या जिंदगी की रूखे है। फर्क मालूम हुआ बंदे के बोलने में और इलाही शख्स के बोलने में। कैसी रूखे हो? जिंदगी देने वाली। तुम तो जिंदगी देने वाले हो, तुम तो मोहब्बत देने वाले हो। इसलिए रसूल ने कहा ईमान, मेरे साथ बोलिए, ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। मैं मोहब्बत को नहीं यहाँ छेड़ूंगा, मैं तो ईमान असर ही कैसे करता है? मोहब्बत की राह से। मोहब्बत की राह से। नाज़िबान किससे? मोहब्बत की राह से क्या करता है? असर करता है। असर करता है। इसका मतलब ईमान का भी कोई असर है। मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। अब बोलना क्या? बोलने से मुराद होती है सिफ्त। एक बेबी पैदा होता है ना, उसके अंदर सिफ्त तो होती है चलने की। चल नहीं सकता ते जे ऐजा नहीं चले तो फिर तुसी उन्हें की कहोगे? पैर सीधे करके चल। जुत्ती पुट्ठी पाए तो तुसी की कहोगे? जूती पहनना उसकी सिफ्त है ना। अगर लोग अक्सर बच्चे उल्टी पहन लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमने उसको सिफ्त को क्या किया? उसे सिखाया। फिर खाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। अच्छा कई बच्चे थप्पे होंगे क्यों पैदा होते हैं? कोई बच्चा थप्पा पैदा नहीं हुआ, पता क्यों होते हैं? अच्छी लाटियां नाल कहते चेची खानी, मामी पीना। वो जो बोलता है ना वो भी ना मामी मामी बोलता है। ये तहकीक हुई है, मेडिकल चेक करो। रोटी को टोटी बोलते हैं। रोटी पानी है, पानी को मम बोलते हैं। उल्टे सीधे डैडी डैडा कहना डैडा। और तिल लाउंदा सीधे बोल लेंदे ना। उनकी सिफ्त जे तुसी डाले की नहीं, मेरी गल नहीं समझे। थप्पापन तो जो बोलेगा तो फिर थप्पे तरीके नहीं बोलेगा, क्योंकि तुसी डाले है इंज। तो फिर की चोचले बड़े करते अपने बच्चे ना, हाय मिट्टी लग जाएगी, हाय मिट्टी लग जाएगी। फिर जो जो एडे चोचले कीते होंदे जिन्हां दा होवे ना एक ही ते अकलोता भी ते देर बाद मिलिया होए वो ज्यादा खराब हुंदे। ओदी वजह की? लाड बहुत देखे जाते। ओदे चोचले ही इन्ने कीते होंदे आ। वो कहदा पुੱਤਰ जिंज दा मैनू मेरी खूबी नूं जागर कीता ना, ओनू मिट्टी नहीं लगन देनी। बाद च ना काम कर लो तो होना ही नहीं। मिसाल तौर पे किथे गया मेरा यार शुरू बहुत लाडा पलिया है, काम नहीं उंज कर सकता है ही सच क्योंकि ਹੁੰਦਾ ही उंज काम नहीं कर सकता। होर कोई लाडला कोई इत्थे होवे जेड़ा लिशा भी जे लिशा भी हाँ लिशा का भी पता है, वो भी जनाब झूठ ही हो जाए, काम भी हो जाए झूठ, लाडा नहीं सारे काम हो जाए। ते जिन्नू सख्ती की गई होएगी ओनू बाद च जेड़ा मर्जी काम च कर दो, कहणगे बड़ी मजबूत। तुम काम च मजबूत जी सच। मेरी बात को समझ रहे? जो सिफ्तें हैं ना जी, उसको कैसे सिफ्त तो आपको ज़ाते इलाही के एतबार से रूहानी में बात करते हैं। सिफ्त तो यस्सु मसीह में आपको मिल गई है,
तो उसको सीखना पड़ेगा। जैसे कि मोहब्बत को सीखना पड़ेगा, पाकीज़गी को सीखना पड़ेगा, सच्चाई को सीखना पड़ेगा, बोलने को सीखना पड़ेगा। हुण एक गल किसी ने कही ना, ऐ मैं बोल कि मेरे पीछे पै गया, मिसाल तौर पर बीवी नूं कह लो भी हुण तुसीं फर्ज कर लो कहना ईमान बोलना सिखाना करना सब, ते तुसीं एक बारी तो नहीं कहना बोलना लग पैना, क्योंकि सिर्फ एक बारी कहना तो नहीं सीखी जाती, सिर्फ तो बार बार मेहनत उत्ते करनी पैंदी। तुसीं ये गल फड़ लो जी बेगम नूं ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਈਮਾਨ ਬੋਲੇ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। मैं प्रैक्टिकल रियल गल्लां करदा है अपने कोलों इत्थे नहीं बनाउंदा, प्रैक्टिकल हुंदा पिछे कोई ना कोई वाकया हुंदा मेरे को वक्री गल मैं ना लाऊं। अब उसकी सिफ्त में क्या है, आप उसको मजाक में लेते, मैं मजाक में नहीं लेता, मैं संजीदा लेता। अब उसकी सिफ्त में क्या है, ढूंढो क्या है, तू ढूंढ बेटा क्या है उसकी सिफ्त में, उसके अंदर मौत छुपी हुई है, तेरे लब मार्फत को महफूज रखे। बात को समझे बच्चों, पीछे क्या छुपी हुई है, मौत, गुनाह की मजदूरी मौत है। तो हमने ईमान बोलना है और लिखा जो उसको दोस्त रखता है उसी का फल खाता उसी का फल खाता फल खाता है। हमने ईमान बोलना है तो सीख कर बोलना, क्या करना है जी, सीख कर बोलना लिखा है। फिर जब खुदा चुनता है, चुनने का मतलब होता है फैसला करना, जब चुनता है तो लिखता है रूह ने पाकीज़गी के अतबार से, इसको बंद कर दो, रूह की पाकीज़गी के एतबार से, रूह की